ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے آج کی حدیث مبارکہ سے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے کہا، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن اس وقت تو اتنا نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بعد والے مراحل اس سے زیادہ آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص اس ہی سے نجات نہ پا سکا تو بعد والے مراحل اس سے مشکل ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے جب بھی اللہ کے عذاب کے مناظر دیکھے تو قبر کا منظر سب سے۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ گروپ 2 امتحانات کا ضلع بھر میں پرامن انعقاد، وسیع انتظامات۔ ضلع کلکٹر و انچارج پولیس کمشنر کے امتحانی مراکز کے دورے، لیا جائزہ۔ بچوں کے ہاتھ میں اکثر اسمارٹ فونز رہنے سے ہونے والے بڑے نقصانات کا تحقیقی رپورٹ میں انکشاف۔ بی جے پی کی سیاسی پالیسی آئین کے بنیادی اصولوں کے لیے خطرناک، سیکولرزم کی بقا کے لیے سب کو آگے آنے کی ضرورت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع میں گروپ 2 امتحانات کا پرامن انعقاد، امیدوار وقت سے پہلے پہنچے امتحانی سینٹرز پر۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے امتحان کے انعقاد کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات۔ ضلع کلکٹر نے کیا امتحانی مراکز کا دورہ اور جائزہ لیا۔ ریاستی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے منعقدہ گروپ 2 کے امتحانات اتوار کو سخت انتظامات کے درمیان شروع ہوئے۔ کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے اتوار کو ضلع ہیڈ کوارٹر کے گریراج گورنمنٹ ڈگری کالج میں قائم امتحانی مرکز کا اچانک معائنہ کیا۔ امتحانات کے انعقاد کے انداز کو قریب سے دیکھا۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ آیا قوانین پر سختی سے عمل کیا جا رہا یا نہیں، اور تجاویز دی۔ انہوں نے کہا کہ امتحانات کمیشن کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے خوش اسلوبی سے منعقد کیے جائیں۔ بتایا کہ ضلع کے کل 19,855 امیدواروں میں سے 9,070 نے امتحان میں شرکت کی اور 10,785 غیر حاضر رہے۔ کلکٹر نے انکشاف کیا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے گئے کہ چاروں سیشنوں میں منعقد ہونے والے گروپ 2 امتحانات پرامن ماحول اور مسلح طریقے سے منعقد ہوں۔ بی جے پی کی سیاسی پالیسی آئین کے بنیادی اصولوں کے لیے خطرناک ہے۔ کانگریس کے اقتدار پر تنقید کرنے والے بی جے پی لیڈروں نے اپنے دور اقتدار میں ملک کی ترقی کے لیے کیا کیا؟ مارکسی اور امبیڈکرسٹ نظریاتی مصنف ایس ملیادری نے کیا سوال۔ بہوجن لیفٹ پارٹی تلنگانہ ریاست کی پہلی مہا سبھا نظام آباد ضلع مرکز کے نیو امبیڈکر بھون میں منعقد ہوئی۔ دوسرے روز اتوار کو ایوان نمائندگان کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس میٹنگ میں مارکسی اور امبیڈکرسٹ نظریاتی مصنف سادھو ملیادری نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔
इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मार्क्सिज्म, अम्बेडकरिज्म मेहनत कश तबके के जमहूरियत के मुतबादिल के मौजू पर बात की। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद मुल्क में जात पात की बुनियाद पर अदम मसावत में इजाफा हुआ। साधव मलयाद्री ने इंकशाफ किया कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, अंबेडकर, साहू महाराज जैसे अजीम शख्सियतों के नजरिए के साथ हिंदुस्तान के बहुजन मेहनत कश अवाम को मुतहरिक करके बीजेपी की मुतासिबाना सियासत को शिकस्त देना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट इनकलाबी कुव्वतें पूरी दुनिया में पार्लिमानी जमहूरियत के जरिए इख्तिदार में आ रही हैं। हाल ही में श्रीलंका में मार्क्सिस्ट पार्टी के रहनुमा को इस मुल्क का सदर मुंतखब किया गया। इस मलयाद्री ने कांग्रेस पार्टी के 50 साल हुक्मरानी की मुखालफत करने वाले बीजेपी लीडरों से पूछा, वाजपेयी को 5 साल और मौजूदा मोदी ने 11 साल तक मुल्क पर कुल 16 साल हुकूमत की। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मोदी हुकूमत उन किसानों को बेरहमी से दबाएगी जिन्होंने इमदादी कीमत के लिए तहरीक चलाई और मजदूर तबकों को जिन्होंने मुल्क भर में कम से कम उजरत के कानून के लिए तहरीक चलाई। इस मौके पर पार्टी रियासती कमेटी के अरकान साई कृष्णा वेंकट, जनरल सेक्रेटरी रामलू, रियासती नायब सदर इल्लैया, जगदीश दीगर भी मौजूद थे। రాష్ట్ర ప్రథమ మహాసభలు జరుపుకుంటున్నాం। ఈ సభల్లో వివిధ విషయాల మీద చర్చించబడుతుంది। ఇప్పటి వరకు స్నేహ పార్టీలన్నీ సందేశం ఇవ్వటం జరిగింది। ఆ తర్వాత కార్యకర్తలు, నాయకులు తమ తమ అభిప్రాయాలు చెప్తారు। దాన్ని నోట్ చేసుకొని వాళ్ళ అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా కార్యక్రమాలు రూపొందించబడతాయి। రెండవది, ఈ మొత్తం చర్చలు తర్వాత ఏంటంటే ఈ మహాసభల యొక్క సారాంశం ఏంటంటే రేపు జరిగేటువంటి ఆ తర్వాత 4 సంవత్సరాలు ఏ విధంగా పనిచేయాలనే దానితో పాటు ఒక నూతన కమిటీని ఎన్నుకొని ఆ కమిటీ ద్వారా बांसवाड़ा पुलिस की जानिब से तलाशी के दौरान मशकूक कार फरार होने की कोशिश। पुलिस ने कार का ताक़ुब किया और कार को पकड़कर कार में सवार 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए कार की तलाशी ली। कार से 30 लाख की जाली नोट बरामद। बैन रियासती गिरोह नकली नोट चलाने का कर रहा था कारोबार। कामारेड्डी एसपी सिंधु शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामारेड्डी पुलिस ने फर्जी करेंसी चलाने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 30 लाख रुपए के फर्जी 500 रुपए के करेंसी नोट्स बरामद कर लिए। जिला एसपी सिंधु शर्मा ने बताया कि कामारेड्डी के बांसवाड़ा कोयागुट्टा के इलाके में तलाशी मुहिम में मसरूफ पुलिस को देखकर एक कार में सवार अफराद थोड़े ही फासले पर अपनी कार को रोककर भागने की कोशिश की। फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आते हुए इस गाड़ी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। कार में सवार 3 अफराद के राजगोपाल, के किरण कुमार और रमेश गौड़ कार में सवार थे। कार की जांच की जिस पर पुलिस को उनके कब्जे से 30 लाख रुपए की जाली करेंसी बरामद हुई। जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के 8 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम बनाकर इसमें तेलंगाना के राजगोपाल और कर्नाटक से हुसैन पीरा दोनों मिलकर जाली नोटों की तैयारी में सरमायाकारी करते हैं। रियासत राजस्थान के कमलेश सबराम और उत्तराखंड रियासत के राधा कृष्ण उर्फ भरद्वाज मिलकर जाली करेंसी बनाते हैं। कामारेड्डी जिले से किरण कुमार, रमेश गौड़ और महाराष्ट्र के अजय इस जाली करेंसी को मार्केट में चलाते हैं। మన దగ్గర ఇనిషియల్లీ దొరికిన ఈ 3 వ్యక్తులతో పాటుగా మనం వీళ్ళని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు హైదరాబాద్లో బోయిన్పల్లిలో తీసుకుని ఉన్న అపార్ట్మెంట్లో ఇంకా మిగిలిన దొంగ నోట్లు ఉన్నాయని అండ్ అదర్ పర్సన్స్, అదర్ కాన్స్పిరేటర్స్ కూడా అక్కడ ఉన్నారని వాళ్ళు చెప్పడంతో మన పోలీస్ టీమ్ దే వెంట్ టు బోయిన్పల్లి అండ్ అక్కడ మనకి ఈ హుసేన్ పీరా అండ్ రామకృష్ణ అలియాస్ భరద్వాజ్ అండ్ అజయ్ ఈజ్ నేటివ్ ఆఫ్ బాంబే వీళ్ళ ముగ్గురిని కూడా అక్కడ మనం కస్టడీలో తీసుకున్నాము అండ్ వాళ్ళ దగ్గర మనకి అగైన్ 26
26,90,000 rupees. Master circular of RBI regarding detection and impounding of counterfeit notes. So దానికి కూడా మనం కంప్లైంట్గా ఉండాలి. So it deals with how these notes after seizure and FSL examination, how they need to be handled. And so going forward, we'll comply with all extant rules. In case my information T20, it's a very criminal act, very bad this thing. So చాలా ఇంట్రెస్ట్ తోటి గ్రావిటీని అర్థం చేసుకుని చాలా ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఈ అమౌంట్ అంతా మనకి డిటెక్ట్ కావడానికి రికవర్ కావడానికి ఎఫర్ట్ పెట్టిన ఆఫీసర్స్ సిసిఎస్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్, SHO బాన్స్వాడ అశోక్, పిట్లం SI రాజు, CCS SI उस्मान, राजेश्वरी। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन ने ग्रुप 2 इम्तिहानी मराकिज का किया मुआयना। इम्तिहान 63 मराकिज पर पुरअमन तौर पर जारी रहा और इम्तिहान के आसपास के इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज रही। इंचार्ज CP सिंधु शर्मा का बयान। ग्रुप 2 इम्तिहान के मौके पर निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा IPS ने एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन मिस्टर बसवा रेड्डी की रहनुमाई में मुख्तलिफ कॉलेजों में कायम इम्तिहानी मराकिज का मुआयना किया, वहां ड्यूटी पर मामूर अमले को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ये इम्तिहान 63 इम्तिहानी मराकिज में पुरअमन तौर पर जारी रहा। बताया कि इम्तिहानी मराकिज के आसपास के इलाकों में दफा 144 नाफिज करते हुए सख्त हिफाजती इंतजाम किए। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस AR श्री शंकर नायक और ACPs, CI, SIs और अमला ड्यूटी पर मौजूद थे। यहाँ लेते एक वक्फा। खवातीन वो दो शिजाओं के फैशन का बाएतमाद वो भरोसामंद नाम जमजम सूट्स। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर मरहबा सुपरमार्केट के पीछे नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। आपकी ईद व तकारीब छोटे बड़े फंक्शन के लिए हमारे यहाँ खवातीन वो दो शिजाओं के दीदा से मलबूसा जो आपकी पहली पसंद होगी और आपको जाज़िबी नजर बनाने वाला स्टॉक दस्तयाब है। जमजम सूट्स की खुसूसी स्पेशल ऑफर 5 दिसंबर तक 20 दिसंबर 1000 रुपये 4 पीस कॉटन ड्रेस, 1400 रुपये 3 पीस वर्क ड्रेस मटेरियल, 1800 रुपये 3 पीस हेवी वर्क ड्रेस मटेरियल, 2000 रुपये 2 पीस पाकिस्तानी फुल वर्क ड्रेस मटेरियल, 2800 रुपये 2 पीस फर्शी लहंगा, 3500 रुपये 2 पीस रशियन प्लाजो गरारा, 1300 रुपये 2 पीस बुरखा। ऑफर सिर्फ 5 ता 20 दिसंबर, तो जल्दी करें। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7987168967 9390414785। वक्फे के बाद दोबारा इस्तक़बाल है। नौउम्र बच्चों का सेलफोन्स का इस्तेमाल खतरनाक, तहकीक में चौंका देने वाले इंकशाफात, रवैयों में तब्दीली, अपने बच्चों को सेलफोन से दूर रखें। स्मार्टफोन्स या दीगर स्क्रीनों के सामने बहुत ज्यादा वक्त गुजारने वाले छोटे बच्चों की नींद का मियार घट जाता है। ये बात चीन में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई। शिंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि स्क्रीनों के सामने बहुत ज्यादा वक्त गुजारने से बच्चों की नींद मुतासिर होती है, जिसके बाद उन्हें तवज्जो करने में मुश्किलात का सामना होता है, जबकि वो ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और रवैयों के दीगर मसाइल का सामना भी होता है। तहकीक में 3 से 6 साल की उम्र के 571 बच्चों की माओ से सर्वे किया गया था। माओ से मालूम किया गया कि बच्चों ने गुज़िश्ता हफ्ते रोजाना कितना वक्त स्क्रीनों, टेलीविजन, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर या दीगर डिवाइसेस के सामने गुजारा। इसके बाद माओ से बच्चों के रवैयों के मसाइल जैसे चिड़चिड़ेपन, अकेले वक्त गुजारने को तरजीह देने या बच्चों से दूर रहने और दीगर के बारे में पूछा गया। सबसे आखिर में इनसे बच्चों की नींद के मियार और दौरानिये के बारे में तफसीलात हासिल की गई। अल्फोरेस मैक्स ओलंपियाड टेस्ट का भैंसा कस्बे के अल्फोरेस स्कूल में इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के 400 तलबा ने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया। अल्फोरेस मैक्स ओलंपियाड टेस्ट भैंसा कस्बे के अल्फोरेस स्कूल में हिंदुस्तान के पहले रियाजीदान
श्रीनिवास रामानुजन की याद में मुनाकिद किया गया। इसके हिस्से के तौर पर भैंसा डिवीजन के मुख्तलिफ स्कूलों के 6ठी से 10वीं जमात की 400 तलबा ने हिस्सा लिया और रियाजी का इम्तिहान लिया। इस मौके पर इस तालीमी इदारे के चेयरमैन डॉक्टर वी नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि आंजहानी श्रीनिवासा रामानुजन ने बचपन से ही रियाजी पर तवज्जो दी और एक नया बाब लिखा। उन्होंने उनकी खिदमत को तारीखी करार देते हुए हर तालिबे इल्म से कहा कि वो रामानुजन की तरह सख्त मेहनत करें और रियासी में मौजज़े पैदा करने के लिए उनके रास्ते पर चले और आगे बढ़े और एक मिसाल बने। उन्होंने कहा कि इस माह की 22 तारीख को मेहमानों के हाथों बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले 3 तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। सड़क हादसे में हलाक होने वाले 2 नौजवानों को उनके दोस्तों ने कैंडल मार्च करते हुए पेश की जबरदस्त खराज अकीदत और नौजवानों से अपील की कि वो बाइक चलाते हुए हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें और फ्लेक्स पर हेलमेट के इस्तेमाल और आपकी फैमिली आपकी मुंतज़िर जैसे जज्बाती नारे तहरीर करते हुए शऊर बेदारी की कोशिश की। इस माह की 10 तारीख को जकरानपल्ली मंडल सड़क हादसे में 2 नौजवान ए संजय और कस्तूरी प्रमोद की मौत हो गई। हादसाती बेवक्त मौत पर उनके दोस्तों ने जुमे की रात अपने दोस्तों को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक मोमबत्ती रैली का एहतमाम किया। फुलांग चौरास्ते पर नौजवानों ने शमे रोशन की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद उन्होंने राजा राजेंद्र चौरास्ते तक एक रैली निकाली और अपने दोस्तों के साथ गुजारी गई मीठी यादें ताज़ा की। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों की बेवक्त मौत पर अफसोस का इजहार किया और गम का इजहार करते हुए उनके साथियों ने जबरदस्त खराज पेश की। इस रैली में नौजवानों ने मोटर बाइक चलाते हुए हेलमेट के इस्तेमाल को जरूरी बताया और हेलमेट के इस्तेमाल के लिए शऊर बेदारी के लिए बैनर हाथों में लेकर रैली का इनेकाद किया और बताया कि वो अपने दोस्तों की अचानक मौत पर गम से निढाले और आवाम से अपील की कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और फ्लैग पर जज्बाती नारे कि आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही तहरीर किया ताकि नौजवान हेलमेट का इस्तेमाल करें। ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ మీ అందరికీ చెప్తున్నా, మీరు కూడా నా బ్రదర్స్ లాంటి వాళ్ళు, మీరు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ప్లీజ్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి. హెల్మెట్, స్పీడ్, ప్లీజ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ అస్సలు చేయొద్దు. ఒక బ్రదర్ ని ఆల్రెడీ మిస్ అయ్యాము, ఇంకా నేను ఇవన్నీ చూడలేను. ప్లీజ్ 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 బీ కేర్ఫుల్. ఇంటి దగ్గర మీ పేరెంట్స్, అక్కలు అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు, సేఫ్ గా ఇంటికి రావాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. సో ప్లీజ్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీని మైండ్ లో పెట్టుకొని ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు హెల్మెట్ ఖచ్చితంగా క్యారీ చేయండి, స్లోగా వెళ్ళండి. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ग्रुप 2 इम्तिहानात का जिला भर में पुरअमन इनेकाद, वसी इंतजामात। जिला कलेक्टर व इंचार्ज पुलिस कमिश्नर के इम्तिहानी मराकिज के दौरे, लिया जायजा। बच्चों के हाथ में अक्सर स्मार्टफोन्स रहने से होने वाले बड़े नुकसानात का तहकीकी रिपोर्ट में इंकशाफ। बीजेपी की सियासी पॉलिसी आइन के बुनियादी उसूलों के लिए खतरनाक, सेकुलरिज्म की बका के लिए सबको आगे आने की जरूरत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई फुलांग चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553
211111